नमस्ते। सो वी आर बैक विद आवर पॉडकास्ट सीरीज। लास्ट पॉडकास्ट को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ है निशिता सिंह। निशिता इज ए योगा टीचर बाय प्रोफेशन एंड आज हमने पॉडकास्ट में ये बात किया कि आप अगर एज ए बिगिनर स्टार्ट कर रहे हैं, हाउ यू विल गेट योर फर्स्ट क्लाइंट, कैसे आपको कहाँ से ब्रेक इवन मिलेगा। निशिता जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस में योगा सेशंस प्रोवाइड करती है, तो उसको कैसे वहाँ एंट्री मिला एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिलेटेड टू करियर इन योगा। तो चलिए आइए। Welcome to our channel. Thank you for having me. We are grateful we are here together. I know. So I just want to ask you कि how it all started. So yoga was part of my life. जैसे स्कूल में बहुत लोगों ने योगा किया होगा, तो वैसे मैंने भी योगा स्कूल में किया, but just as a physical aspect. Then I think 3 years back, I don't know why मुझे लगा कि suddenly I had this urge that I want to do yoga all of a sudden. तो I think जैसे कहते हैं ना कि योगा आपको बुलाता है, आप नहीं डिसाइड करते हैं, इट्स जस्ट हायर पावर कॉल्स यू। तो ऐसे ही कुछ हुआ मेरे साथ भी। देन 3 years back I started doing and then जब करते करते आई रियलाइज किया जब मैं कर रही हूँ तो व्हाई नॉट गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट। योगा विल बी मोर देन जस्ट द आसनास। वो करते करते आई डिड माय टीटीसी एंड देन आई डिड अनदर टीटीसी वेयर आई मेट यू। सो बस वही करते हुए एंड दैट्स व्हेन द जर्नी started. You were a practitioner, you are still a practitioner. Yes. उसके बाद you came into the yoga teacher's journey. Can you just elaborate कौन से courses आपने किए शुरू से and which are your favorite styles of yoga that you prefer and everything? I think Shikha knows this very well. This is for her audience that my favorite is Hatha Yoga because I feel there is a sense of freedom in Hatha Yoga. Obviously Ashtanga is more boundary based क्योंकि आपका एक fixed pattern है. There is not something that you can add or subtract. Whereas in Hatha, it's like the world is your platter. मतलब you can do however you want to do and get into the asana. So my personal is obviously Hatha Yoga. I did my 300 hours training in Hatha Yoga and I did my 200 hours training in Ashtanga Yoga. Yeah, but I prefer more Hatha Yoga. So you did your TTCs and everything. Yes. So if somebody wants to join, can you just suggest where to start with and what to do first? So I would personally say if somebody wants to start, so I would say first start doing yoga classes. Don't just jump into doing TTC because क्या होता है कई बार we tend to be very fascinated with what we see on social media कि wow ऐसा कर सकते हैं, but the journey is very lengthy to get into that posture. So first you start with आप कहीं भी अपने लोकल में बहुत आजकल योगा स्टूडियोज है, ऑनलाइन है, ऑप्शंस है, आप पहले वो कीजिए consistently for 2-3 months. कई बार क्या होता है you fall out of it, मतलब after 2-3 months you'll feel कि यार ये मैं नहीं कर सकती, this is not for me. So वैसे ही आप once you feel कि yes I am falling in love with it each day, I want to learn, then you can decide to do TTC and there are many options. आप you have done so many TTCs. I think आपको तो रिकॉर्ड मिलना चाहिए इतने TTCs करने का. So there are various options to do TTC. जैसे हमने मैसूर में भी किया था, that's also one of a good option. And also there are so many in Rishikesh and also nearby cities में आजकल बहुत लोग ऑनलाइन TTC करा रहे हैं. Before jumping into TTC, my only suggestion and advice would be start doing a regular online classes या कहीं भी and see if that is for you or not. Because if you love, then only you can teach. If you don't love something, then you cannot, give it back to your students. You might have chosen something else also, Pilates or something like that. Why you chose yoga? What inspired you to jump into this? So yoga because ना my dad is also very fitness freak. मतलब शुरू से हमें ना वो inculcate किया गया. तो I have been like a swimmer also, state level swimmer also. I've been a national level athlete also. So yoga is जैसे कहते हैं ना एक physical aspect तो वो touch करता ही है, but वो एक calmness लाता है आपके अंदर, एक ठहराव लाता है जो कोई और sports नहीं लाएगा. जैसे अगर मैं बहुत लेमन की तरह करूँ तो I do CrossFit also. But जब आप एक योगा सेशन करते हो ना, you are refreshed, अपने दिन के लिए तैयार हो. और जब आप 1 घंटे का CrossFit या weight या कोई भी करोगे, एनर्जी रहती है, but you feel at the end you need rest. You are drained. मतलब वो एक डोपामिन हाई तो होता ही है, but then you need rest. You're not ready for the day. तो जैसे कहते हैं ना एक फिजिकल एस्पेक्ट तो हर कोई छुएगा, बट जो योगा मेंटल एस्पेक्ट आपको छूता है और एक ठहराव लाता है आपके अंदर, that's the difference. And
what I needed because I am very hyperactive. So I had this misconception also कि योगा तो बस क्या है, बैठे हुए हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, that is yoga. But when you get into it, आप देखेंगे जैसे मैं बहुत क्रॉसफिट एथलीट्स को भी योगा करवाती हूँ, उनका भी नोशन यही था कि यार मतलब क्या है, बैठे रहना है, ब्रीथ करना है, तो बड़ा बोरिंग है, वेट्स उठाना इज वेरी, मतलब वो सब पंप मिलता है, योगा में क्या होगा. When I ask them to hold ना 10 seconds के लिए भी, तो they are like जल्दी जल्दी 3 2 1. तो आपको ये रियलाइज होता है कि आपकी बॉडी मूवमेंट और बॉडी वेट से भी आप इतना कुछ कर सकते हैं. तो ये बड़ा मिसकंसेप्शन है. तो आप एक अपने अंदर ठहराव तो ला ही रहे हैं एंड अपनी स्ट्रेंथ को भी आप आंक रहे हैं. कई बार क्रॉसफिटर्स भी नहीं कर पाते, जो इतना हैवी लिफ्ट करते हैं वो अपना बॉडी वेट कई बार नहीं उठा पाते. तो आई थिंक दैट कॉम्बिनेशन जो है योगा में, वो कोई और स्पोर्ट में नहीं है, या कोई जैसे पिलाटेस में नहीं है. मुझे पर्सनली ड्रॉ किया योगा की तरफ कि मुझे ये लगा कि मेरे लिए बहुत सही फिट बैठेगा. I've seen you take corporate yoga sessions also. It's been few years that you are taking. How you got into corporate yoga sessions? Suppose like मेरे पास बहुत सारे questions आते हैं कि how can we start taking corporate yoga session? Please just explain elaborately. How I started was कि it was जैसे कहते हैं ना डेस्टिनी है, हर चीज मेरा by God grace से हुआ मेरा. कि I had a friend who had a friend जो corporate कराती थी session. तो I got that first chance उन्हीं के through. But I think आपने बहुत सारी videos भी बनाई हुए and I think वो बहुत beautifully done है कि फॉर कॉर्पोरेट आई थिंक मेरे को जो लगता है जो ईजीएस्ट वे है कि आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स है, रिलेटिव्स है, वो अलग अलग कंपनीज में आजकल देयर सो मच इम्पोर्टेंस गिवन टू मेंटल हेल्थ. और योगा बहुत लोग इनकॉर्पोरेट कराते हैं. योगा सेशन, वेलनेस सेशन कहते हैं, या ऐसे सेशंस नाम देते हैं, एंड देन दे डू साउंड हीलिंग एंड योगा सेशंस. तो आई फील कि आप जब भी रेडी हैं, आप अपना CV बनाइए, आप इनको पहले दीजिए जो आपके फ्रेंड्स है, फैमिली, एंड टेल देम कि यार इफ यू आर प्लानिंग टू डू अ सेशन, पिच इन. इवन आप कई बार कई ऑफिसेस को इतना पता नहीं होता है, या कई कॉर्पोरेट्स होते हैं जिनको नहीं पता होता कि यार हम 1 घंटा इसे सेशन करा सकते हैं, एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर द एम्प्लॉइज. तो आप उनको बोल सकते हैं एंड यू कैन पिच योर आइडिया. तो वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिल सकती है. बिकॉज क्या होता है, शुरुआत थोड़ा सा नोन के थ्रू होती है. लिंक्डइन, आई थिंक लिंक्डइन का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं. यू कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद द HRs. तो वहाँ से आपको होता है. तो आपको क्या है, 1 या 2 ब्रेक की जरूरत होती है पहले. वंस यू हैव दैट, यू कलेक्ट दैट मटेरियल एंड देन यू कैन पिच इन टू इवन हायर अथॉरिटीज या और कॉर्पोरेट्स में आप कर सकते हैं. बट आई थिंक ईजिएस्ट वे इज टू गो थ्रू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कि आप उनके कॉर्पोरेट्स में जो जो काम करते हो उनके आप अपना CV डायरेक्टली, क्योंकि वो थोड़ा इजी हो जाता है कि अगर ऑलरेडी कोई कंपनी में एम्प्लॉय है तो इट बिकम्स इजियर फॉर द पर्सन टू रीच, और आपका भी थोड़ा सा बैरिकेड थोड़ा सा वो हो जाता है डाउन टू रीच देम. Since you are a teacher, you also teach practice with your student and all. How you balance, like how you manage, teach your students when to stop and when to surrender and when to put efforts. How you balance between these two? जब मैं योगा सिखाती हूँ ना, तो I always push them. I always tell them this is your comfort zone and we are going to go above the comfort zone. Now क्या होता है, हर बंदे का comfort zone अलग है, हर बंदे का limit to push is very different. हर बंदे का level, जैसे हम लोग योगा में बात करते हैं, no two bodies are equal, no two friends stamina, सबका different होता है. So इसमें ना I play a less important role and my students play more important role. They have to see कि what is my strength, what is my weakness, what I want to achieve and what my body is capable at this moment. So आपको वो जानना बहुत जरूरी है. And इसमें important role है knowing yourself. हम लोग क्या करते हैं, आधी बार we compare and उस चक्कर में we push too much. Your body is not prepared or there is some injury या कुछ है. तो I always tell them that there is your comfort zone. You have to step out of that. आप पुश कीजिए कोई भी आसना. देखो, पेन के बिना आप कभी भी कोई लेवल अचीव नहीं कर सकते. हम भी अभी प्रैक्टिस करते हैं. देयर आर सो मेनी आसनास दैट वी वांट टू अचीव, बट यू शुड नो व्हेन दैट पेन इज टर्निंग इनटू एन इंजरी. सो आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स दैट डोंट बी इन द कंफर्ट जोन कि आपको कुछ फील नहीं हो रहा है. पुश योरसेल्फ, बट यू हैव टू सी. आपको अपनी स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस में आपको खुद पता होना चाहिए. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग ब्लाइंडली फॉलो ना करें. कोई भी चीज है, आपकी क्लास में जैसे आपके 10 स्टूडेंट्स है, तो देयर माइट बी 6 स्टूडेंट्स डूइंग अमेजिंगली वेल एंड 4 माइट नॉट. तो वो कंपैरिजन से क्या होता है कि हम लोग ना
एक्स्ट्रा पुश करते हैं कि यार वो कर सकता है मैं क्यों नहीं. तो आई फील नोइंग योर स्ट्रेंथ, नोइंग योर लिमिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर इज ओनली अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट अ टीचर कैन डू. एट द एंड टीचर को नहीं पता कि आपको क्या फील हो रहा है, एक्चुअली कहाँ पेन है, क्या है. दैट आई टेल माई स्टूडेंट्स दैट यू हैव टू बी अवेयर एंड डोंट कंप्लीटली फॉलो सम स्टूडेंट और जस्ट कंप्लीटली ब्लाइंडली फॉलो मी. यू हैव टू सी योर बॉडीज लिमिटेशन. तो वो चीज आई थिंक बाउंड्री सेट करना, क्लियरली कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें आई जस्ट वांट टू ऐड लाइक बहुत सारे एलिगेशंस आते हैं योगा टीचर्स के ऊपर कि आपके साथ क्लास करके आई फेल्ट दिस लाइक इन अ नेगेटिव सेंस. तो वो एक्चुअली कई कबार टीचर्स की भी गलती होती है कि वो समझा नहीं पाते व्हेन टू स्टॉप एंड व्हेन टू सरेंडर एंड व्हेन टू जस्ट पुश. बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अस, वो प्रैक्टिशनर के ऊपर होता है टू अंडरस्टैंड आवर बॉडी वेल. लाइक अभी जैसे ऑनलाइन सेशंस हम ले रहे हैं, वी कांट लाइक डाइव डीप इनटू देयर बॉडी एंड देन वो कर सकते हैं कुछ भी. इट्स अप टू अस. हम भी जैसे सेशंस लेते हैं फ्रॉम आवर टीचर्स, वी डिसाइड हाउ मच वी कैन पुश इन सम एडवांस आसनास एंड ऑल. Yes. एंड इट्स वेरी इजी आई फील कि वो टीचर के ऊपर ब्लेम कर देते हैं. हाँ एग्जैक्टली. yeah. देखो इसमें सी यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो यू हैव टू टेल, यू हैव टू टेल कि क्या प्रॉब्लम हुई है. डॉक्टर अपने आप देख के आपको नहीं जज कर सकता. तो अगर आप कोई आसना कर रहे हैं, आपने आसना ट्राई किया, आपको कहीं भी डिस्कम्फर्ट लगा, आपने इमीडिएटली बताया कि देन यू कैन गिव वेरिएशन. जैसे आप भी अपनी क्लासेस में वेरिएशन देते हो. बट अगर कोई बंदा कह रहा है नहीं मेरे को पेन हो रहा है, नहीं मैं तो सब कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, मैंने अपना पेन को क्या किया, इग्नोर करके आई डिड. योर बॉडी इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट वेयर पेन इज टर्निंग इनटू एन इंजरी. दैट ओनली यू कैन. कोई कितना भी अच्छा इंस्ट्रक्टर है, या तो वो आपको कंफर्ट जोन में रखेगा कि आपको कभी पेन नहीं होगा एंड आपका लेवल वही रहेगा, या आप अंडरस्टैंड करें कि यार मेरा थ्रेशोल्ड क्या है. एंड वंस यू फील किया नहीं दिस इज टर्निंग इनटू एन इंजरी एंड दिस इज नॉट वेरी कंफर्टेबल पेन, देन यू टेल द टीचर इज गोइंग टू गिव यू वेरिएशन. जैसे हम सबको साथ वेरिएशन देते हैं. बट आई थिंक इसमें कोई भी टीचर नहीं बता सकता कि क्या गलत हो रहा है. आप देख के कुछ जज कर सकते हैं, थोड़ा टेक्निक बता सकते हैं उनको, थोड़ा अलाइनमेंट में हेल्प कर सकते हैं. इफ दे पुश टू मच बियॉन्ड द कैपेबिलिटी, उसमें आई थिंक नोबडी कैन हेल्प. How difficult it was to get your first client or get into the first corporate session? We want to know the truth. So actually to be honest, when I did my first TTC, मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि मैं योगा कर रही हूँ तो मैं नॉलेज भी ले लेती हूँ कि क्या है. आई एम श्योर योगा इज नॉट जस्ट आसना, इट मस्ट बी वेरी वाइड. इतने सालों की प्रैक्टिस है हमारी, तो इतने सेंचुरीज पुरानी है, तो आई एम श्योर कुछ योगा आसना के अलावा भी बहुत चीजें होंगी. तो मैंने जस्ट क्यूरियोसिटी में किया वो. माई ब्रदर्स फ्रेंड, शी वॉज लुकिंग फॉर योगा टीचर एंड माई ब्रदर इज लाइक नहीं मेरी दीदी ने भी अभी TTC किया, आप करो. एंड देन माई ब्रदर कॉल्ड मी कि दीदी ऐसे ऐसे है. मैंने बोला नहीं मैंने तो सिखाने के मोटिव से किया ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए किया था. एंड देन इज लाइक नहीं दीदी आप ले लो फिर भी कोई बात नहीं. एंड दैट्स हाउ आई गॉट माई फर्स्ट क्लाइंट. बट मैं ये ना सबको कहना चाहूंगी कि आप कितना भी अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप प्लीज सिखाओ, क्योंकि आप तभी जानोगे, आपका हुनर भी तभी निकल के आएगा, आपको अपनी कैपेबिलिटी का अंदाजा भी तभी लगेगा. हम एक्चुअली कहते हैं ह्यूमन नेचर ना, अपने आप को हमेशा हम कमी आंकते हैं कि यार हम अच्छे नहीं है, वो अच्छा है, हमसे नहीं होगा, हमारे लिए नहीं है. एंड मेरा भी वही नोशन था. उसके बाद ऑटोमेटिकली आई स्टार्टेड टीचिंग एंड आई फेल्ट कॉन्फिडेंट कि नहीं यार आई कैन टीच. आई थिंक आई हैव दैट इन मी दैट आई कैन टीच स्टूडेंट्स. ये अपने आप ही ऐसे हुआ. एंड देन फिर इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना स्टार्ट किया. देन आई स्टार्टेड टेकिंग क्लाइंट्स मोर सीरियसली, थोड़ा सा पिच इन किया, देन सोशल मीडिया का यूज किया. बट या फर्स्ट क्लाइंट आई गॉट लाइक दैट. एंड वैसे ही मैंने अपने जिम में जहाँ मैं जाती थी, उन लोगों को भी मोबिलिटी के सेशंस चाहिए थे, तो वो लोग योगा डालना चाह रहे थे, तो उनने भी मुझे बोला. तो वहाँ भी मैं थोड़ी हेजिटेंट थी, बट देन लेटर ऑन आई स्टार्टेड दैट वे. Okay, so how you design your yoga class? मेरा बहुत सिंपल रहता है. फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी क्लासेस आई वांट टू टेक इन अ वीक, आई डिवाइड. सो आई ट्राई टू कवर द इंटायर बॉडी इन अ वीक और मे बी 2 weeks डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी क्लासेस. जैसे अगर आप 5 days ले रहे हो तो यू कैन इजिली कवर योर इंटायर बॉडी इन अ वीक. तो उसमें मैं डिवाइड करती हूँ कि जैसे मैंने शोल्डर कोर करा पहले, तो ये आपका ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया. उसके बाद आता है उसको सब डिवाइड करने में. तो आई ऑलवेज स्टार्ट विद अ गुड वार्म अप. मतलब अगर आप वार्म्ड अप नहीं है तो आप कोई भी आसना नहीं कर पाएंगे, और आपके लिए हर बंदा और हर स्टूडेंट स्टिफ होगा. बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू डू अ प्रॉपर वार्म अप. योर बॉडी इज इन एन एक्सेप्टिंग स्टेज फॉर द आसना.
तो उसके लिए मैं अच्छा गुड वार्म अप कराती हूँ एंड आई हैव अ क्लियर आइडिया व्हाट आई वांट टू अचीव एट द एंड ऑफ माय सेशन, कि मैं सेशन के बाद क्या आसना करवाना चाहती हूँ एंड उसके बाद मैं बैक काम करती हूँ कि अगर मुझे ये आसना चाहिए, इस आसना के लिए मुझे ये मसल्स ओपन चाहिए, उस मसल को ओपनिंग के लिए मुझे ये वार्म अप चाहिए एंड ये ड्रिल्स चाहिए। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप जितने भी बड़े टीचर हो ऑलवेज प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द सेशन। ये आई थिंक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार कर लेंगे, बट क्या होता है ये चीज ना स्टूडेंट्स भी जज कर लेते हैं, हाउ प्रिपेयर्ड यू आर और हाउ नॉट प्रिपेयर्ड यू आर, दे विल ऑलवेज गेट टू नो। सो नो मैटर हाउ गुड टीचर you are, always have a basic layout of what you want to achieve in the classes. I do a warm up, then what I want to achieve at the end of the session, then doing the drills, opening of that muscle, and then doing the asana, so that the students can give the best. If you don't prepare, if you don't do proper warm up, आप कितना भी अच्छा मतलब हो, आप वो नहीं करवा पाएंगे आसना, and वो आपका स्टूडेंट हमेशा स्टिफ ही रहेगा आपके लिए। So recently we just arranged a retreat. कभी मैंने बोला नहीं है कि how a retreat is organized or how things are. This is one question कि आप थोड़ा सा इलेबोरेटली बोले कि हाउ योगा टीचर्स कैन अरेंज रिट्रीट, क्योंकि ये भी एक लाइक बहुत ही लुक्रेटिव वे है टू अर्न सम मनी एंड टू बिल्ड अ बेस क्लाइंट्स का। सेकंड इज यू आर नाउ अ पार्टनर विद अस आल्सो, लाइक वी आर अ योगा कॉलेज नाउ, सो हाउ यू मैनेज दैट आल्सो। दोनों जानना है कि अगर किसी को स्टार्ट करना है, हाउ कैन समबडी स्टार्ट। सी आई थिंक रिट्रीट का ना सबसे पहले आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आप रिट्रीट कर रहे हैं तो हैव अ गुड पार्टनर। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, you may be a very good teacher, you may have all the skills that you require, but when you go somewhere you want variety, तो आपके एक limitations आ जाते हैं। Now when we were in Mysore, she has a different flavor, I have a different flavor, but I think एक common wavelength और आपका common goal होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारा उद्देश्य रिट्रीट से ये था कि हम कुछ अच्छा experience दे पाए लोगों को, that was our main aim, not to earn money. It is not that कि earning money is a bad thing, but अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और आपका शुरुआत में ही गोल ये कि मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, देन आई थिंक वो लॉन्ग रन में नहीं जाएगा। यू माइट हैव टू टेक लॉसेस इन द बिगिनिंग एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। नाउ इफ योर पार्टनर एंड यू आर नॉट ऑन द सेम वेवलेंथ, तो वहां प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहले हैविंग अ गुड पार्टनर सपोर्ट सिस्टम, बिकॉज यू आर गोइंग टू कैरी द लॉसेस एंड द प्रॉफिट टुगेदर। रिट्रीट के लिए सबसे बड़ी बात तो पहले ये चाहिए। देन ऑलवेज थिंक कि आप उसका रिट्रीट का आउटकम क्या चाह रहे हैं, मतलब आप क्या सिखाना चाह रहे हैं, आपका स्किल क्या है जो आप बेस्ट पोर्ट्रे कर सकते हैं। बिकॉज सी एट द एंड वी आर ऑल लर्निंग, ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ आता है। आप अपने जो भी स्ट्रेंथ है उसके अराउंड प्ले करके रिट्रीट डिजाइन कीजिए, ताकि यू आर ट्राइंग टू टच ऑल द पार्ट्स ऑफ योगा एंड यू आर गिविंग द बेस्ट एक्सपीरियंस। नाउ विद इन योर पार्टनर एंड ऑल डिसाइड कि आप उसको कैसे डिजाइन करना चाह रहे हैं, वेयर यू आर एबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। नाउ सी क्या होता है कि रिट्रीट में देयर आर लॉट ऑफ बैक एंड वर्क। आपको पहुंच गए, रिट्रीट हो गए, बट उससे पहले टू गेट द क्लाइंट, टू मेक सोशल मीडिया, मतलब अगर आप इफ यू आर अ वेरी गुड टीम देन इट्स वेरी गुड, बट इफ यू आर द ओनली टीम, आप ही एक फोटोग्राफर है, आप ही एक सोशल मीडिया मैनेजर है, आप ही एक्टर है, आप ही डायरेक्टर है, तो उसके लिए यू नीड टू हैव अ गुड टीम। मतलब आपको सोशल मीडिया पे बहुत काम करना पड़ेगा एंड यू हैव टू डिसाइड अ बजट। तो ये कुछ चीजें प्लानिंग में जाती है कि आपने अपना बजट डिसाइड कीजिए, आपने कहाँ करना है। यू आर फ्रॉम द सेम स्टेट, यू आर फ्रॉम द सेम सिटी और somebody is flying out, take that budget into consideration, what you want to give और आप कहाँ कर रहे हैं, that is very important। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, there are many places, so आपका बजट क्या है, what you want to sell your retreat as in a high end वाला, आप एक low end वाला और just a basic वाला, वो डिसाइड कीजिए। आपकी क्लाइंटेल क्या पसंद करते हैं, बिकॉज जैसे थोड़ा सा फीडबैक लीजिए लोगों से कि what kind of, बिकॉज आजकल बहुत लोग रिट्रीट्स कर रहे हैं, so what is going to make you apart, मतलब what is going to bring you apart from all the other things, मतलब आपका ऐसा क्या फ्लेवर है जो बाकी लोग नहीं दे रहे हैं, उस पे वर्क करके। एंड आई थिंक पहले 2-3 रिट्रीट के लिए बी प्रिपेयर टू टेक लॉसेस। इफ यू डोंट थिंक यू कैन टेक लॉसेस, आई थिंक इट्स नॉट द राइट बिजनेस फॉर यू, बिकॉज इफ यू आर एमिंग कि फर्स्ट रिट्रीट से आप अगर प्रॉफिट्स कमाने के लिए कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल। It took me 9 years to reach here and you're only 2 years purana and you have achieved a lot, I guess. So please explain how you got there. The retreat thing, I must tell, like she was fabulous with everything, the management and taking the sessions and everything. Everything was so perfectly done. It was perfect because the back end work. See, I'm telling you, अगर आपको जो चीज परफेक्ट दिख रही है तो इसके पीछे बहुत मेहनत जाती है बिहाइंड द सीन्स। अगर आपका बिहाइंड द सीन्स काम नहीं अच्छा है ना, तो वो आपको इन फ्रंट भी दिखेगा। सो इतना सीमलेस
इसीलिए बिकॉज वी वर्कड फॉर 3 or 4 months, I think 4 months पहले सीड ग्रो किया था, एंड शी वर्कड रिलेंटलेसली फॉर 3 months फॉर एवरीथिंग, मेकिंग द बैनर्स, मेकिंग ऑल द PDFs together. Yeah, but it was majority of her work, so you cannot deny. So that's why you need a strong team. अगर आपका दोनों में clash हो रहा है, आप सोचते हो कि see this is the understanding. अभी भी ये मुझे कह रही कि मैंने किया है. That's the kind of understanding you need from your partner. आप अगर ऐसे बंदे को देख रहे हैं कि जो बोले कि मैंने ज्यादा किया, तो that's never going to work. You have to do as it's our work. See, work ऐसा भी हो सकता है किसी का 60% effort और किसी का 40%, but you need to be prepared कि उसको एक मानने के लिए. So what I feel is arranging a retreat is only for people who you are connected with. Connected in the sense, not professionally, like personally. I have done a lot of retreats before, like a lot of workshops before. I was not connected to people personally. तो मेरे को लगता था मैं अपना 100% नहीं दे पाई शायद वहाँ, या फिर मेरे को 100% नहीं like वो space नहीं था कि मैं अपना 100% दूँ. With you and Kamal Acharya, it was very like it was safe place कि हम अपना strength, हम अपना weakness we can show with each other and then we can plan everything together. And I think these are the things to be considered. आप जब पार्टनर्स चूज करते हो अपने. Correct. And yes, you were absolutely right कि first thing, the most important thing is to choose the right partner for your business and for yourself. Because if you're looking to just conduct retreat and all, ये बहुत long term goal है. Exactly. ऐसा नहीं है कि आपने एक retreat arrange किया and then आप गायब हो गए. हाँ. Every 3-4 months में people arrange retreats and अभी यही trend चल रहा है. Correct. So yes, she's right, I guess. And then just talk something about the new yoga school. We are a yoga Yes. school now. So जैसे मैंने ना शुरुआत में की थी ना कि डेस्टिनी, मतलब मैं इसमें बहुत ब्लेस्ड मानूंगी. इसमें I'll say 95% जो हाथ है वो शिखा का है. Honestly, I will not take any credit for this. In fact, जो 5% मैं ले रही हूँ, that also I should not take. When we met in Mysore, she helped me a lot with my YouTube. So the YouTube entire thing is her effort that she has put. I never had that kind of a vision, but when she came, हम लोग का वेवलेंथ मैच करा and it was all gradual. I would also say one thing, क्योंकि हम लोग बिजनेस की बातें कर रहे हैं, किसी के साथ आप सिर्फ बिकॉज आपको बिजनेस में कोई फायदा दिख रहा है, डोंट ट्राई टू अटैच योरसेल्फ. बिकॉज क्या होता है, वो जब आपका मोटिव खत्म हो जाएगा देन योर रिलेशनशिप इज ऑल्सो ओवर. कहते हैं ना, रिलेशनशिप एक रीजन की वजह से आप चला रहे हैं ना, तो वो रीजन जब खत्म हो जाएगा तो आपके पास रीजन नहीं रहेगा कि यार मैं इसके साथ क्यों कनेक्टेड हूँ. सो फॉर अस इट वॉज वेरी म्यूचुअल. वी वर फ्रेंड्स. वी नेवर हैड एनी काइंड ऑफ बिजनेस थॉट, एनीथिंग. इट जस्ट ग्रेजुअली केम. बात की, we want to do a workshop. We did a small workshop. We want to do a retreat. We did a small retreat. Then we wanted to open our own school and we did. So it was never planned कि यार ऐसा हम लोग साथ रहेंगे तो ये करेंगे. If you connect to that person ना, you have to accept the flaws, you have to accept the strength. And if you don't have the capability of doing that, I would say just don't enter into that territory. Yeah. I'm a very like proper example for this, I would guess. कि इतने सालों से I was looking for a partner to start my business and all. मेरे को ऐसा लगता है कि पार्टनर की जरूरत नहीं होती बहुत सारे बिजनेसेस में, लेकिन जरूरत होती भी है. आई फील कि आप इस इंडस्ट्री में यू कांट गो अलोन. मैंने बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स देखे हैं, बहुत सारे कंपनीज में मैं खुद भी काम मैंने किया है. दे वर सोलोप्रेन्योर्स एंड वो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे. वी कांट वर्क इन योगा इंडस्ट्री लाइक दिस. हमको एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही आगे चलना पड़ेगा. एंड दैट्स द ओनली थिंग इज जस्ट फिटेड इन द बैक ऑफ माई माइंड कि इफ वी आर इनटू समथिंग आई विल ऑलवेज बैलेंस दिस टू थिंग. शी हैज her own brand Samskara, I have my own brand Arogyam. दोनों कभी clash नहीं होते. And I think this is the best part of it. Whenever things go कि ये करना है, we go into collaboration. Yes. ऐसा नहीं है कि आरोग्यम ऊपर चला गया, संस्कारा ऊपर चला गया. This is not the thing that's happening. And ये इसीलिए हो रहा है because कोई motive से connected नहीं है. इसलिए you need to choose the right partner. अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो have that partner who treats your brand और दूसरे का brand as own. This is a very important lesson. आप लोग को लग रहा होगा कि तो अपनी बातें करें, but that's the truth. That's the genuine way we feel. There is no hidden agenda. I mean, we genuinely wish each other well. We want to see each other grow, and that's the kind of person or people you should keep in your life generally also. It's not just about business or yoga. Keep those people who are happy to see you grow. Any advice you want to give to people who are thinking of starting
स्टार्टिंग योगा लेकिन नहीं कर पा रहे? सी आई वुड से कि जब तक आप नहीं करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा. एंड ऑब्वियसली द मोर यू डू द मोर यू आर गोइंग टू गेट बेटर एट इट. मतलब देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्ट टीचर और बेस्ट टीचर और ग्रेट टीचर. आप टीचर जर्नी के साथ ही बनते हैं. आई नो दैट फीलिंग कि यार कैसे होगा क्या होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रिमूव दैट थिंग कि somebody is judging me. Just think that मैं मेरी प्रैक्टिस कर रहा हूँ. I am here to get an experience. I am here to just showcase my talent and refine my talent. तो आप स्टार्ट कीजिए अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जो आपके बिगेस्ट क्रिटिक हो. आप उनके साथ कीजिए आपको सीरियसली ले. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू ट्रीट दिस एज योर मतलब दिस इज माई एवरीथिंग देन ऑलवेज बी विद पीपल हु ऑल्सो हैव द सेम फीलिंग. वो नहीं कि मजाक में कर रहे हैं चल हम भी कर लेते हैं. तो बी विद दोज पीपल जो उतना ही सीरियसली ले, आपको गाइड करे. एंड आई थिंक गाइड इन दिस सेंस मैं तो ये बोलूंगी जो आपको क्रिटिसाइज करे. पॉजिटिव स्ट्रेंथ है वो आपसे कोई नहीं ले सकता. जो वीकनेस है या जो एरियाज है जिसपे आपको वर्क करना है, जो आपको वो दिखा सके वो लोगों के साथ अटैच कीजिए. गेन एक्सपीरियंस. एक टाइम ऐसा आएगा यू विल बी लाइक यार एक टाइम पे तो मैं बोल ही नहीं पाता, आज मैं 100 लोगों की क्लास ले सकता, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता. आई डोंट थिंक यू हैव टू बी लिटिल बेशरम. थोड़ा सा बेशरम बनना पड़ेगा कि आप क्लासेस लीजिए, मिस्टेक्स कीजिए, एक्सेप्ट दोस मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड ग्रो. दैट इज द ओनली वे. मतलब अगर इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, देयर इज नो वे आउट. यू हैव टू गेन एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस कैसे गेन होगा जब आप किसी को सिखाएंगे. इसी के उसमें आई जस्ट वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड नो इन योगा इंडस्ट्री? बिकॉज a lot of people attached yoga to free sessions. So here we have to keep our boundary. मेरी story I think मेरी audience जानती है. I want to hear your story also. How you just kept this boundary कि free में नहीं लेना है. See, there will be lot of people who have different opinions. Yeah. कि इतना महंगा क्यों, योगा ही तो है. तो first of all ना आप जब भी सेशन लेते हैं ना, डिफाइन दैट व्हाट काइंड ऑफ अ क्लाइंटेल आई वांट. यू नीड टू हैव दैट लेवल कि मैं इस लेवल से नीचे नहीं जाऊंगा. चाहे मैं क्लासेस ना लूं, चाहे मेरी क्लास में 2 ही बच्चे हो, आई एम ओके विद इट, बट दिस इज द लेवल दैट आई एम नॉट गोइंग टू गो डाउन. दूसरा, फ्री में क्या ले लेते हैं. आपको फ्री में तो कोई कुछ भी नहीं देता. आप फ्री में छोटी छोटी वो फ्रीबीज आती है, वो भी आपको जब आप बड़ा पैकेज परचेज करते हैं तभी मिलती है. कोई आपको वैसे फ्री भी नहीं देता. आप कोई शैम्पू लेते हैं या कोई बड़े ब्रांड का, आपको छोटा तभी मिलेगा जब आपने अच्छा खासा खर्च किया होता है. सो यू हैव स्पेंड सो मच ऑन योर टीटीसी. आपने उस स्किल को लर्न करने के लिए, एक्वायर करने के लिए आपने भी अपना एफर्ट डाला है, अपना टाइम डाला है, अपना मनी डाला है. व्हाई यू वांट टू टीच फ्री में? मतलब ठीक है एक्सपीरियंस लेना है, बट यू आर ऑल्सो गिविंग समथिंग इन रिटर्न ना. दैट पर्सन ऑल्सो हैज टू रेसिप्रोकेट. यू कैन चार्ज मिनिमम अमाउंट. आप एक छोटा सा, ऐसा नहीं है कि आपने बहुत हाई प्राइसिंग रख दिया, बट यू ऑलवेज हैव टू चार्ज समथिंग. मतलब हम कहीं भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं तो हम सोचते हैं यार थोड़ा दान कर दें. दैट्स योर मंदिर ना. व्हेन यू टीच दैट्स योर टेंपल. डोंट टीच इट फॉर फ्री. मतलब बिकॉज क्या होता है, देखो सोशल मीडिया पे बहुत फ्री कंटेंट मिलता है, हम सेव करते हैं, हम कितनी बार उसको जाके देखते हैं, वो ऐसे ही रह जाता है, सेव्ड ही रह जाता है. फ्री का कोई वैल्यू नहीं करता अनलेस अनटिल समबडी टेल्स यू ना 999 का एक मैं वही चीज आपको बेचेगा 999. आप लोग उसको सीरियसली लोगे कि यार मैंने पैसा दिया, मैं थोड़ा सीरियसली करूंगा. सो यू वांट पीपल टू टेक यू सीरियसली बिकॉज दिस इज वेरी सीरियस बिजनेस फॉर यू. सो ऑलवेज टेक अ मिनिमम अमाउंट. डोंट डू इट फॉर फ्री. Any last suggestions or advice or wishes for our brand? Anything you want to tell? Our brand. देखो, just be true to yourself, be true to what you're doing, be 100% true, be 100% transparent, because that's the only thing you can take with you, that your authentic self. So always do with full heart, be ready to fall and be ready to get up. Don't cry, you have to always shake it up. Graph हमेशा linear नहीं होगा. मैं हमेशा बोलती हूँ it's going to go down, it's going to go up. So when it go down, don't give up. When it is up, don't get arrogant. Thank you so very much for coming over, and we are glad we did this together. And this is going to really help a lot of yoga aspirants, how you started and what you did and how to get into the sessions and all. So thank you so very much. Thank you for having me. We wish कि आगे भी और भी ज़्यादा podcast हम करेंगे. बिल्कुल, definitely. Whenever you call, I'm always here. Bye bye.